बट माइंडसेट की काफी सारी चीजें हैं कि सबसे ज्यादा एडवर्स सर्कमस्टांसेस में अगर किसी को सरवाइव वो क्या चीज है जो उनको हेल्प करती है सरवाइव करने में एंड उस सिचुएशन से निकलने में. बिकॉज व्हेन आई रेड दैट बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जरूर मिला मुझे उस बुक से. इस एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट की एस्पेक्ट्स इज मेंटल स्ट्रेंथ. And by mental strength, it means various aspects. What I have also observed is that spontaneity is the key when it comes to various stages. We have to understand the approach being taken by UPSC when it is deciding on the format of prelims. So it is very clear that it is not now just about selection. It is also in some way that they want to filter out people through a quick process, right? Hello everyone, a very good evening and warm welcome to all of you. So I am Praveen Garje. I am heading the mentorship team as well as heading the Pune branch of Civils Daily IF. Okay, so it has always been pleasure to meet you all around on every week and to have to chat with you guys, to provide some knowledge or just discuss on few things. So I love the practice which we have been kept doing through the Civils Daily platform. So today we have with us a very special guest, and he is mentor to me as well, and I have been knowing him since 2016. So Gautam Mahakul sir, sir, very good evening to all, you. Thank you, Praveen. Yes, sir. So I'll give a brief introduction about sir. Sir has joined the services, civil services through civil account services, and in 2016. So he's ideally from 2016 batch. Since 7 years, he's being a bureaucrat. He's handling the things of civil accounts and everything. Right now, he is posted as a deputy controller of accounts. And the special thing, which will be like good to know about, like with respect to you and your studies, is that since 7 years, he has been interviewed like around 2000 plus students. So he's a best person, and around 90% of students who have been appearing in the interview every year sought insight from sir. So this is very like this kind of goosebump things, because यार interview stage पे आने के बाद ऑलमोस्ट आपका फिक्स होता है, एंड वहां पे आप उसी की गाइडेंस लेते हो जिसका लिटरली आपको एक एक दो दो नंबर बढ़ने में हेल्प हो. एंड यस, सो सर सिविल्स दिल्ली में भी पिछले 3 ईयर से वन ऑफ द इंटरव्यू पैनलिस्ट है, एंड सर्विंग ब्यूरोक्रेट में वो चेयरमैन है. सो सर वंस अगेन वार्म वेलकम, एंड आई होप कि आप बच्चों को आज एकदम एनलाइटिंग सेशन मिलेगा कि टॉपर का माइंडसेट कैसे होना चाहिए, राइट? कि व्हाट mindset topper should have, especially for 24 and 25 guys. Okay. Yes, so yes, and so SOP of this session would be like first 20-25 minutes I'll ask few questions to sir on the behalf of you all people, and then I'll open this floor to question answer. You can directly question to sir and sir will accordingly answer. Perfect. Chalo. So sir, I would like to ask like couple of questions. The first would be, what were the common traits that you found in the people who have excelled, and like how we can achieve them by using which qualities? Okay. Praveen, when we discuss this part, what I have found, especially at interview stage for sure, and also from my personal experience along with people, my fellow officers also with whom I have interacted, my experience is that the most important ability is to connect the various dimensions, and also it is about how do you grasp stuff at various levels of your preparation. Suppose when somebody is preparing for the first time, so the ability to grasp becomes the key, because you have to go through various subjects in current affairs, in your optional. So that becomes, and also one needs to connect it with various dimensions. And because current affairs is playing such an important role,
So in my experience, I would say that uh, the ability to connect with क्या करा रही हो मम्मी? various aspects at different आया levels है of क्या? preparation. Somebody's mic is on. Yes, yes. Saurabh, please, could you please mute their mics? Mic of all the students, please. Yeah, yeah. So Okay, thank you. yeah, and also specifically what I have observed at the interview level, that when it comes to the ability to understand various aspects, one thing is that if somebody is able to listen well, specifically if somebody is asking a question, if somebody is able to listen well and try to understand the various dimensions of the question, then I think the best output can be sought, because we can see that now also in the way questions are asked, being asked in prelims also, that in one question there are 2 3 aspects, in mains also, in mains even though it has been as well, that in one question you will have 3 to 4 aspects that you need to connect with. So the most important thing is that the way of preparation should be an interconnected approach at every level, because that is ultimately what is going to help. अच्छा, परफेक्ट, राइट सर. सो बेसिकली हाँ, मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि प्रीलिम्स का लेवल भी, मेंस का लेवल भी टफ होते जा रहा है. एंड जैसे आपने सही कहा कि अगर मैक्सिमम डायमेंशंस ओपन करके अगर स्टूडेंट जवाब देते हैं तो आई थिंक ज्यादा पर्सनैलिटी के ट्रेड दिखते हैं. Yes, गॉट द yes, पॉइंट. of course. जी, परफेक्ट. सो सर, But आई वुड लाइक, there's some issue with my voice, because I think some people are commenting that it's not audible. Can you check? guys, you need to change your setting also at same problem before. I think student have their own issues. I think Okay, Pavan Kumar said everything is fine. okay, So okay. guys, please change the setting if your sorry would not be audible to you, right? So I hope there is not technical issue from our side. Okay. Yes. Okay. Fine. So yes, yes. So great. That is completely all right. Ki what traits people should understood. Ki these traits required. The next question would be ki what kind of mindset. See, I would like to tell to students ki student, like this is not only about academic things. दिस इज Yes. ऑल अबाउट कि आप ये सोच के चलो कि आज हम उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने 2000 प्लस बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं. तो 1-2 नंबर से जो रह रहा है वो क्यों रह रहा है, या यहाँ तक आने के बाद पता चलता है कि अरे यार इसने ये चीज अच्छी करी होती, जो सर को पता चलता है वहां बैठ के पैनल में, या फिर ये इस चीज की वजह से ये स्टूडेंट जो है टॉप 100 में आ सकता है, या वो इंटरव्यू में 193 तक जा सकता है. तो उस पर हम बात करने वाले हैं. तो सर मुझे लगता है कि क्या माइंडसेट लेके, या लाइक हाउ significant is like mindset in determining success of your in the UPSC exam. लाइक मतलब बच्चों का क्या होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं. 3-4 साल, 2 अटेम्प्ट भी मान लीजिए तो अभी 3+ ईयर्स लगते हैं. तो Yes. किस चीज का माइंडसेट होना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोकना चाहिए, अगर फेलियर्स भी आ रहे हैं तो फिर उसको कैसे कैटर करना चाहिए. Okay. So, Praveen, as we all know that इस एग्जाम के लिए one of the most key aspects is mental strength, and by mental strength it means various aspects when it comes to this exam, because at every level of this exam, you know the fact that you are going to compete with a lot of people. Of course, it comes down when it comes down to mains and interview, but then you have equally capable people who are there out there with you. So it comes down to mental strength, because and it is also associated with the fact that by it we don't mean that you have to ban out of your life and you need to go into a shell. It doesn't mean that. It means that you have to be mentally aware that at various stages what is your end goal, right? That, and one, of course, one does not need to burden themselves with the fact that fine, we are going to take 1 year or 2 years for the exam, because that can create a confusion also. For 1 year, 1 year or 2 years, we are going to cut ourselves out and just be there academically, maybe
15 hours or 18 hours. It is not like that. It is about that two things, that whether your crux for each stage of the exam is in the right place or not. And secondly, apart from mental strength, what I have also observed is that spontaneity is the key when it comes to various stages, because we can analyze any stage of the exam and we will observe that being spontaneous is very, very important, because that is what will help you to connect with various aspects. Because in prelims we are seeing that many questions are out of context, in the sense that you can't really connect them with a single source or a single material. So in that context it becomes important that how you are able to extract information from various aspects. And at the level of interview also, it is my observation that spontaneity helps you, because that is what will help you go through various dimensions. And you will understand that, okay, fine, this issue may be connected with history also, this issue may be connected with geography also. The best example for this I can give is that the way somebody writes an essay, because in case of an essay, people have to connect with various aspects. There is of course a format that you have to have a coherent approach. You need to go into the history of the issue, you need to connect it with various dimensions, then you need a conclusion based on your understanding of the issue. And I think that is the best way one needs to cultivate a mindset, because that is the way one needs to look at various subjects also, and also the attitude for the examination. So one needs to be diligent as well as spontaneous at the same time. That is what is important. परफेक्ट, राइट सर। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे जो टेक अवे है, ऑब्वियसली मैं सर ने तो बहुत खूबी से समझाया, बट डिमांड ऑफ एग्जाम जितना जल्दी आप पकड़ोगे उतना आपके लिए बेटर है। थोड़ा सा हाँ, जो मैं समझा हूँ, एंड स्पॉन्टेनिटी एंड डिलीजेंस, वो दो कीवर्ड्स है जो मुझे लगता है कि हमने उसको अटैच रहना चाहिए। स्पॉन्टेनियस मैं बिल्कुल इसमें कहूंगा, बिकॉज जैसे मेरा एक्सपीरियंस काफी लिमिटेड है एंड मेंटरशिप तक है, बट आई हैव बीन मेंटर्ड लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जैसे सर ने भी कहा बहुत सही कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है एग्जाम में। 2018 के बाद सर आपने भी बिल्कुल देखा है कि प्रीलिम्स बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस एंड बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। मतलब जी सर, लास्ट ईयर जैसे 9 क्वेश्चंस थे सिर्फ, जो 1 ओनली 2 ओनली वाले थे, कि कौन से 1 कौन से 2 ये नहीं बता रखा था। इस बार वो ऐसे 47 क्वेश्चन थे सर। तो इतना ज्यादा स्पॉन्टेनिटी, खैर हमारे स्टूडेंट को हमने थोड़ा सा आइडिया दे रखा था कि मतलब ऑलवेज रेडी फॉर सरप्राइजेस, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एटीट्यूड लेके चलना चाहिए कि सरप्राइज के लिए रेडी नहीं रहेंगे तो नर्वस हो जाएंगे, एंड 10 मिनट भी नर्वस हो गए तो प्रीलिम्स तो अबाउट टू फेल हो गया, या लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस चला जाएगा। सेम विथ इंटरव्यू कि आपने से इतने मॉक लिए और होता है कि जो ट्रांसक्रिप्ट है वो कभी कभी अलग ही चली जाती है, तो ये भी जी जी, तो बिल्कुल, तो ये स्पॉन्टेनिटी के पे वर्क करना बड़ा जरूरी है। राइट। तो सर एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है जो मैं आपको फोन पे भी पूछा करता था ड्यूरिंग अवर इंटरव्यू पीरियड, कि आप सीजन इंटरव्यूअर भी रहे हैं, कि सर आप नंबर क्यों ज्यादा देते हैं और क्या क्या फैक्टर आप इंटरव्यू में चेक करते हैं, मतलब एग्जैक्ट, मतलब ऐसे स्टूडेंट आ गया तो आपको क्या लगता है इसको 193 मान लीजिए देने हैं, तो इसको क्यों देने हैं? सिर्फ हम्बल है, या फिर बहुत स्टूडेंट को लगता है कि सर मैं ऑनेस्ट हूँ इसलिए मुझे ज्यादा नंबर मिलने चाहिए? तो सर क्या क्या कैरेक्टर्स यूपीएससी इंटरव्यू पैनल देखता है सर? ओके, सो प्रवीण, इसका मैं बिल्कुल प्रिसाइज आंसर दूंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी इंटरव्यू स्टेज पे जो कैंडिडेट्स हैं, आई थिंक more or less 90% of them are at the same level. Okay, so what qualities we looking for is that the people should have passion first of all, and they should be confident about themselves, because these two qualities are important in the sense that for if somebody is preparing for civil services, it cannot be out of any sort of compulsion, right? One has to be passionate, and then only they can prepare for it. So that passion should be reflected at the time of interview also, because it is not, when it comes to your personality, everybody is expecting that if somebody is going
to join the civil service. So they should display the passionate attitude, because the technical aspects of any job can be learned within a few years. Whether it's any service, 4 year, 5 years down the line, people will know the in and outs of every service and what technical aspects are expected from them. But that passion should be the key when it comes to the at the interview level, and also at the both the other levels. So that is one part. And secondly, it is also about confidence, because passion can only take you a step. So your confidence is reflected in your knowledge also, attitude also. So if you are confident about your level of preparation, and also the way you are going to present yourself, so that plays the key. Because many a times our experience in the interview process is that a candidate may not be knowing 4 questions, 5 questions, 8 questions. It is okay, but whenever they come across something that they know, so that should be presented in such a way that people are able to grasp that okay, this person knows about it and he's pretty confident about it also. So that is, those two are the most important qualities when that differentiates people who are getting a 160 and who are getting a 190. Of course, if people nobody can really predict if somebody will get a 190 plus or not, but definitely if somebody has to go from a 160 to a 185, 190, then these two qualities are very, very important. परफेक्ट, राइट सर। वैसे तो सर जो आपने अभी तक प्रेडिक्ट किया है मोस्टली वही नंबर्स हमारे बच्चों को आ रहे हैं। Yes, जी सर, परफेक्ट। सर प्रीलिम्स एंड मेंस का डायनेमिक्स काफी चेंज हो रहा है, जैसे आप भी जानते हैं कि लास्ट ईयर इथिक्स का पेपर इतना ज्यादा लेंदी था कि बच्चे उसको खत्म ही नहीं कर पाए। एंड जी, एंड सीसैट भी इतना डायनेमिक आ गया है कि कैट लेवल था वो, मतलब इवन हमारे कुछ जो मेरे पुणे में स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए इस ईयर, वो कहते हैं कि सर आई एम IITian बट स्टिल आई कुडंट एबल टू क्वालिफाई द सीसैट। तो बुक लिस्ट एंड रिसोर्स तो चलो ठीक है, मतलब हमारे मेंटर्स तो सर बिल्कुल हम गाइड करते हैं, बट आपके लिए आपके एक गोल्डन वर्ड्स क्या होंगे कि ऐसे इतना डायनेमिक नेचर हो रहा है तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, या फिर अल्टुगेदर बेसिक पढ़ना छोड़ दे, या फिर सिर्फ बेसिक पे कंसंट्रेट करके मतलब प्रैक्टिस करे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है, इस पे थोड़ा सा सर बात करिए। ओके, सो प्रवीण, जैसा आपने भी बताया और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, the level of unpredictability and also the difficulty level of CSAT, it is increasing, no doubt. See, first of all, we have to understand the approach being taken by UPSC when it is deciding on the format of prelims. So it is very clear that it is not now just about selection. It is also in some way that they want to filter out people through a quick process, right? So in this scenario, what becomes important is that when it comes to, let's say, GS, now in GS, that since you mentioned that last year 47 questions were in a way that they were random or uncertain. So again, in those times, it all boils down to the basic. One cannot leave out basics in a complete manner, because then एग्जाम का पैटर्न कुछ भी हो, ठीक है, तो लेकिन 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही। बिकॉज माई एक्सपीरियंस इज कि शायद 5 साल पहले या 4 साल पहले आपको 45-50 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो कि आप श्योर शॉट निकाल सकते हो। वो नंबर भले ही नीचे आ जाएगा, वो नंबर 25 पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा, लेकिन 30 का भी मतलब होता है कि 60 नंबर तो आपके आएंगे ना। तो बेसिक्स पे तो स्टिक करना ही होगा। हाँ, ये जरूरी है कि द टाइम पीपल आर गिविंग टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, दैट कैन चेंज। लाइक पहले शायद अगर प्रीलिम से 4 महीना पहले आप मॉक पेपर्स करना शुरू करते थे,
तो शायद अब 6 महीना पहले करना चाहिए. So that is my understanding, because at the end of the day it's about questions. आप ठीक है, आप बेसिक्स कितना रिवाइज करते हो, यू कैन कट डाउन सम टाइम फ्रॉम दैट, वो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर डूइंग वो बढ़ाना पड़ेगा. Whether it is 1000 questions or 2000 questions, that is for every aspirant to determine, and you as a mentor can also figure out that कि वो exact number क्या है जिसको करके लोग prelims में जाएं. एंड व्हेन इट कम्स टू सी सैट, ऑफ कोर्स सी सैट का डिफिकल्टी लेवल जो है 4-5 साल से इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट. बट देन एज यू सेड, इफ समबडी इज एन IITian, they are also saying कि it's not easy to solve it in a go. सो अल्टीमेटली यही है कि शायद पहले सीसैट को लोग एग्जाम से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या 1 महीना पहले उसके मॉक पेपर सॉल्व कर लेते थे, उतने से हो जाता था. बट नाउ पीपल हैव टू गिव सम मोर टाइम. 2-2.5 महीने शायद आपको साथ साथ जीएस के साथ साथ सीसैट के पेपर सॉल्व करने होंगे. एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली, कि जो गैप पीरियड रहता है जीएस में और सीसैट में, वो उसमें अपनी एनर्जी कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आफ्टर GS1 होता क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन अमंग एस्पिरेंट्स कि अच्छा आपने इस क्वेश्चन में क्या ऑप्ट किया, क्या नहीं किया. दैट टेक्स आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम पीपल, बिकॉज ऑलरेडी 2 घंटे में दे आर क्वाइट एग्जॉस्टेड. तो उसके बाद अगर आप इस चीज में 1 और घंटा लगा दोगे कि कौन से क्वेश्चन में क्या ऑप्ट किया है, then it will take a lot of energy from you, because 3 hours लंबा टाइम होता है जिस टाइम पे एग्जाम होता है. weather is also certain, so one has to preserve their energy in that time. भले ही आप शाम को आके कितना भी टाइम लगाइए क्वेश्चंस एनालाइज करने में, बट उस 3 घंटे को आप इस तरीके से कंजर्व कीजिए कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है कि जो सीसैट के बेसिक्स हैं आप उसको गो थ्रू कर लो उस टाइम. maybe you can read through some passages from previous years, maybe you can go through some reasoning questions and all. That is the best way, because ultimately ये है कि उस दिन हमें सीसैट भी क्लियर करना है. पीपल हैव टू गो विद दिस माइंडसेट. 66 लाने हैं, लेकिन 66 लाने के लिए 2 चीजें हैं कि अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखना है सेकंड पार्ट के लिए, एंड थोड़ा सा और टाइम देना होगा सीसैट में, वो तो क्लियर है. परफेक्ट, राइट सर. जो वैदिक मैथ है, जो फॉर्मूलाज है, वो थोड़े हैंडी हो. राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल. जी जी. तो यस, तो मतलब ये बात तो है सर कि जैसे सिर्फ नॉलेज बेस, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा. नॉलेज इज द की, हम ये कहते हैं. बट मुझे लगता है जो आपसे डिस्कशन अभी हुआ उससे मुझे एक लाइन लगती है कि नॉलेज इज द बेस बट कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग इज द की. यस, बिल्कुल बिल्कुल. जी जी. तो क्योंकि वो तो सबके पास आ चुका है, तो अभी उसके ऊपर थोड़े हमें आना होगा. इस रिगार्डिंग मैं स्टूडेंट्स को एक क्विक, इफ the team allow me to share the screen, I would love to share the screen and show कि how हमारे mentorship में जो स्टूडेंट है, जो मेरे टीम के अंडर मेंटोर है, वो स्टूडेंट को इस प्रीलिम्स एंड सीसैट एंड इवन मेंस के स्ट्रेटेजी के लिए एक टेबल बनाते हैं एंड वहां पे उनका परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है. एंड उसके अकॉर्डिंगली बोला जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए. जैसे सर ने बोलते बोलते कहा कि एज अ मेंटर यू नो बेटर कि कितने क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट करने चाहिए. तो yes, I would love to share the screen, please. I hope yes, I right? think it's visible. Yeah. Ji sir, ji. Thank you. So guys, this is the, this is the framework for prelims. Okay. So this is the PDF, and yes, you can see here there are few columns and rows. In rows we have kept test, polity, prelims test, polity test 2, history and current affair of June, then accordingly. And in columns you can say second column total score. तो यहाँ पे क्या करना है ना, हमारी टीम क्या करती है कि आपको एक्सेल शेयर करती है. यहाँ पे आपको एवरी 15 डेज में जब आप टेस्ट लिखते हो, कि सर ने कहा कि 6 महीने पहले आपको टेस्ट लिखना चालू करना चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इट वुड बी लाइक फ्रॉम दिसंबर. तो हम क्या करते हैं कि प्रीकम मेंस का इंटीग्रेटेड पढ़ाई करते करते आपको टेस्ट लिखने को बोलते हैं. एंड वो रैंडम नहीं होता, वो प्रॉपर स्टडी करके हमारे कंटेंट टीम ने प्रीलिम की टेस्ट निकाली होती है, उसका मॉडल आंसर दिया होता है, बट उसके साथ
आपका 1-on-1 रिव्यू होना चाहिए। तो टोटल स्कोर, इनकरेक्ट कितने आए और इनकरेक्ट में इनकरेक्ट क्यों आए। देखो यहाँ पे 4 कॉलम्स है पिंक में, अवेयरनेस गैप, कंसेप्चुअल गैप, रिवीजन गैप, एक्स फैक्टर गैप। तो कुछ चीजें सर मैंने पढ़ी ही नहीं इसलिए हुआ। तो इनकरेक्ट क्यों हुआ इसका पोस्टमार्टम होना बड़ा जरूरी है। या सर मैंने पढ़ा था बट सर कॉन्सेप्ट मैं भूल गया, जैसे एल नीनो पूछा तो सर कॉन्सेप्चुअली नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में क्यों हॉट करंट आता है, क्यों वहां पे फ्लड आता है और यहाँ पे क्यों सूखा होता है, ये सर नहीं पता। तो दैट इज कॉन्सेप्चुअल गैप। देन रिवीजन, सर मेरे को आता है बट मैं रिवाइज नहीं करा। अक्टूबर हीट मेरे को नहीं पता सर क्योंकि मैं रिवाइज नहीं करा कि होता क्या है। तो कॉन्सेप्ट तो याद था। देन एक्स फैक्टर गैप, अब एक्स फैक्टर में होता है सिली मिस्टेक, नर्वसनेस, अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ एग्जाम, कभी कभी आप डर गए, या देर आर 26 गैप्स एक्चुअली, मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं जो हमारे सजल सर भी बताते हैं। तो हम इसके जज करते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप टेस्ट लिखते हो ना ये सारे, तब आपको अंदाजा आता है कि आपने कहाँ गलती करी, और आपके मेंटर फिर अकॉर्डिंगली आपको बताते हैं व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी दैट वन शुड यूज ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जामिनेशन। और यहाँ पे बात है मेंस के ऊपर। तो मेंस का आई जस्ट टेक 1 मिनट। मेंस का देखिए, हम मेंस के टेस्ट फर्स्ट कॉलम में हमने बताए हैं, उसके पैरामीटर्स हमने सेकंड कॉलम में बताए हैं। आई होप कि ये लोड हो चुका होगा, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, स्ट्रक्चर, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, रिवीजन, एक्सप्रेशन, ये एवरी टेस्ट का आपके मेंटर फिल करके आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बताया जाता है कि क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन आपने करा है क्या, स्ट्रक्चर मतलब क्या, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सेग्रीगेटेड मैनर में आपने किया है, कंटेंट आपका वर्दी है, डिमांड आप पकड़ चुके हो क्या, प्रेजेंटेशन जैसे सर ने कहा कि इट्स ऑल अबाउट कि आप प्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं, इंटरव्यू में भी और मेंस में भी, एंड लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। तो ये सब चीजों पे हम वर्क करते हैं, ये सिविल्स डेली का फ्रेमवर्क है, तो अकॉर्डिंगली सारे टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो आई होप कि ऐसा टेबल आप मेंटेन करना चालू करें और आप अपने मेंटर को ये दिखाए, एंड इससे जो है खुद का एक सॉर्ट ऑफ एनालिसिस करें, जिससे हम पकड़ पाए कि हम एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अक्सर सर अक्सर क्या होता है कि यूपीएससी के एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज मैं कहूंगा, नेक्स्ट प्रीलिम सर पे होती है एंड तब ये आपके लास्ट ईयर प्रीलिम्स के नंबर बताते हैं आप। तो जी हाँ तो बिल्कुल। उसका लिटरली कुछ फायदा नहीं है। हाँ मतलब ऑफ मान लीजिए, कोर्स। है ना सर, मतलब मान लीजिए मेरी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ हूं मैं अपना हम्म पढ़ रहा हूँ, मैं अपने मेंटर के अंडर आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस हाई पे है, और हम्म 1 महीने पहले मुझे पता चल रहा है लास्ट ईयर मुझे 67 आए थे प्रीलिम्स हम्म जीएस में, तो दिस इज हम्म, लाइक वेरी हार्डनिंग। तो मुझे लगता है हाँ, कि उससे कुछ नहीं, तो आपको असेसमेंट गाइस वीकली बेसिस पे करना है, हम्म एंड मेंटर की इंटरवेंशन चाहिए। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर सर। जो भी न्यू टेक्निक्स, न्यू स्ट्रेटेजी आपने बताई, मुझे एक चीज जाननी है, एकदम रैंडम, एकदम सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है, रूटीन कैसा होना चाहिए एक एस्पिरेंट का। ओके। सो जैसे डेली रूटीन की बात है, इट डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे हो एग्जाम प्रिपरेशन के, ठीक है। सो सपोज इफ अगर किसी ने प्रिपरेशन शुरू किया, जो भी वो अटेम्प्ट माइंड में रख रहे हैं, सपोज 24 अटेम्प्ट किसी का माइंड में है, तो अब उसको क्या है कि शुरू के 6 महीने में या 4 महीने में, डिपेंड्स ऑन एवरी एस्पिरेंट, तो जो बेसिक्स को टाइम देना चाहिए दैट हैज टू बी गिवन। एंड पढ़ाई का शेड्यूल हैज टू फैक्टर इन कि हम प्रिपरेशन में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अभी। सो व्हेन इट कम्स डाउन टू बेसिक्स, आपको शुरू में 3-4 महीने बेसिक्स को देना पड़ेगा, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, यू विल हैव टू डिवोट सम टाइम। एंड आफ्टरवर्ड्स देयर इज अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे कि यू विल हैव टू डिसाइड कि हमें आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी है। एंड योर जो आपका टाइम शेड्यूल है वो उसी हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। कि सपोज आप अगर इस स्टेज पे हो कि जहाँ पे आप आंसर्स लिखना शुरू कर सकते हो, तो आप लेट्स से यू विल हैव टू टेक आउट सम टाइम, मतलब दिन में 1.5 घंटा 2 घंटा यू विल हैव टू टेक आउट टाइम एंड यू यू जस्ट हैव टू राइट आंसर। फिर आपको ये भी देखना है कि हमारी जीएस की तैयारी कितनी हो गई है, ऑप्शनल की तैयारी कहाँ पे है।
तो जब आप सपोज जब आप बेसिक्स पढ़ रहे हो, तो बेस्ट टाइम है कि जब आप जीएस के बेसिक्स शुरू करो, उसी टाइम आप ऑप्शनल की तैयारी भी साथ साथ शुरू करो। बिकॉज होता क्या है कि स्टार्टिंग में वी हैव अ हायर पावर टू ग्रास्प, तो वो वाला जो पीरियड है, जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल। लोगों को जीएस को भी टाइम देना है उसमें, और ऑप्शनल भी शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज जितना उस टाइम पे आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो हाईएस्ट होती है, तो यू शुड यूटिलाइज दैट टाइम वेरी वेल। उस टाइम में थोड़ा सा आपको खुद को स्ट्रेच करना चाहिए कि सो दैट वी आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आप जीएस के भी बेसिक्स अच्छा कर लोगे एंड ऑप्शनल के भी बेसिक्स अच्छा कर लोगे, उसके बाद यू विल हैव टू फैक्टर इन कि अब हम ठीक है, अब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि आंसर राइटिंग जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, बोथ जीएस की भी ऑप्शनल की, उतना ही अच्छा रहेगा। So then you will have to reorient your schedule in that way कि अच्छा ठीक है, अब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो अब हम रिवीजन में भी थोड़ा टाइम निकालें और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए भी टाइम निकालें। जैसे चाहे हम मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं या कुछ इंटीग्रेटेड मटेरियल पढ़ रहे हैं, सो उस हिसाब से टाइम डिवाइड करना हो कि अच्छा आंसर राइटिंग भी करनी है, रिवीजन भी करना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। फिर जब प्रीलिम्स पास आएगा, तो देन आपको थोड़ी सी फिर जो टाइम शेड्यूल है उसको रीओरिएंट करना होगा कि हमें शुरू कर देना है, तो हमको प्रीलिम्स में इतना टाइम देना है। उस समय थोड़ा आपको करंट अफेयर्स ज्यादा करना होगा, क्योंकि जितना टाइम पास आएगा यू विल हैव टू रिवाइज करंट अफेयर्स मोर। फिर स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए कुछ बुक्स ओरिएंटेड होती हैं कि हाँ भाई, आप उसको मेनली प्रीलिम्स के लिए फोकस कर रहे हो, तो यू विल हैव टू फोकस ऑन दैट। सो फर्स्ट 4 5 6 months one has to focus on both basics, GSB, ऑप्शनल भी। इररिस्पेक्टिव, ये उस टाइम ये सोच के नहीं करना है कि प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं या मेंस के लिए कर रहे हैं, उस टाइम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं, तो वो टाइम सबसे ज्यादा क्रूशियल है। उसके बाद आपका जो टाइम शेड्यूल है वो एग्जाम के हिसाब से आपको रीओरिएंट करना होगा कि आप अभी किस स्टेज के एग्जाम पे हो। अगर आप प्रीलिम से आपका 7 8 महीने का टाइम है अभी, तो आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग में टाइम दीजिए, थोड़ा सा रिवीजन में टाइम दीजिए। फिर जब जैसे ही यू गेट क्लोज, मतलब बिलो 6 मंथ्स जब रह जाएगा प्रीलिम्स के लिए, देन यू शुड गेट इनटू दैट जोन। एंड ऑल्सो एक, सिंस आपने टाइम शेड्यूल की बात पूछी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितना आप प्रीलिम्स या मेंस के पास आओगे, तो जो एग्जाम का टाइमिंग है, जैसे सुबह प्रीलिम्स में ये है कि सुबह 9:30 से 11:30 है, फिर दोपहर का टाइम है, फिर आपको देना है। आप जितना अपना डेली शेड्यूल उस हिसाब से बनाओगे ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या है, बॉडी ऑल्सो उस शेड्यूल के प्रति ओरिएंट हो जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मेंस के पास आओगे, तो मेन से 2 महीना पहले अगर आप अपना शेड्यूल जो है डे का एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से बनाओगे, तो आपका बॉडी विल ऑल्सो गेट ओरिएंटेड टू दैट, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रोडक्टिविटी अगर आंसर राइटिंग में, क्वेश्चन सॉल्विंग में हाई रखनी है, तो आपको उस एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना होगा। परफेक्ट, राइट सर। बिल्कुल, ये काफी सारी टेक्निक नई पता चली है, जैसे कि प्रीलिम्स के पहले 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30 वाला बायोलॉजिकल रिदम सेट करना। क्योंकि Yes. बच्चे जो जनरली बच्चे सर इंजीनियर आते हैं, इंजीनियर बैकग्राउंड के होते हैं, एंड 11th आवर पे पढ़ाई करके सब्जेक्ट निकालना और वन नाइट स्टडी करके फर्स्ट क्लास ले आना, ये एकदम कन्वेंशन है सर। हम मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने अपने फर्स्ट लाइफ में यही करा है। बट Yes. जैसे सर ने कहा कि यहाँ पे परसिवरेंस इज द क्वालिटी विच वन शुड मेंटेन, एंड परसिवरेंस के साथ एक स्मार्ट वर्क, मेंटर गाइडेंस, एंड साथ में नोट मेकिंग या बायोलॉजिकल रिदम सेट करके पढ़ना, क्योंकि फिर दिन में कुछ याद नहीं आएगा। बहुत सारे सर मेरे ऐसे स्टूडेंट है जो रात भर पढ़ते, फिर पेपर के टाइमिंग में वो रिदम चेंज नहीं कर पाते, जो सर्कैडियन रिदम होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे। जी, तो सर घर आते तो ये सब कुछ मुझे आता था, पता नहीं तब क्या हो गया, फिर ये सुनने को मिलता है, तब बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मेंस काफी अच्छा रहता है इन लोगों का। परफेक्ट सर। जी जी सर, लास्ट क्वेश्चन स्टेज वुड बी फॉर द पीपल ओनली, फॉर द स्टूडेंट्स ओनली, और बिलोव्ड स्टूडेंट्स, कि सर एक ऐसी कोई बुक बताइए कि जो ना एक माइंड से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या बच्चों को इतने रिगरस प्रोसेस में
जाने के लिए, जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, कभी रिलेटिव्स भी डाउट करने लगते हैं, सेल्फ डाउट आने लगता है, जब पापा मम्मी बोलते हैं बेटा अभी कितने साल लगाओगे, या फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, इससे भी दूरी बढ़ जाती है। तो सर जेब में क्रेडिट कार्ड नहीं होते, तो ऐसा क्या है सर जो विल पावर हमारी स्ट्रांग रखे, माइंड से स्ट्रांग रखे? ऐसी कौन सी बुक, फिक्शियस, नॉन फिक्शियस, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, आप रिकमेंड करोगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए? एक या दो बुक भी चलेगा सर। यस यस, मैं आपको एक बुक बताऊंगा, बिकॉज क्या होता है ना, एक से दो भी बता दे तो फिर ये है कि बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एक बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग। ओके, इट्स अबाउट, एक ऑथर है विक्टर फ्रैंकल। इट्स इट्स अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल इन अ नाजी कंसंट्रेशन कैंप। सो इट इज अबाउट, हाँ, उस बुक में आउट एंड आउट, इवन दो ऑथर का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट माइंडसेट की काफी सारी चीजें हैं कि सबसे ज्यादा एडवर्स सर्कमस्टांसेस में अगर किसी को सरवाइव, वो क्या चीज है जो उनको हेल्प करती है सरवाइव करने में एंड उस सिचुएशन से निकलने में। बिकॉज व्हेन आई रेड दैट बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जरूर मिला मुझे उस बुक से। बिकॉज आप, कई बार ये होता है, ऑफ कोर्स नॉलेज के लिए हम काफी सारे बुक्स पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन, फिक्शन, ये सब पढ़ते हैं, बट को बहुत कम बुक्स होती हैं कि जो आप पढ़ो और आपको एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दे अबाउट सर्वाइवल। सो दैट वीज दैट बुक इज वेरी गुड, एंड आई थिंक थोड़ा सा जब भी टाइम मिले तो वन शुड गो थ्रू दैट बुक, क्योंकि उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो परसीवरेंस, सर्वाइवल, जो क्वालिटीज एग्जाम साइकिल में सबसे ज्यादा नीडेड होती हैं, दैट दिस बुक प्रोवाइड्स दैट। ऑसम ऑसम। और ये काफी, मतलब आई वुड लव टू रीड दिस बुक एंड आई थिंक स्टूडेंट विल आल्सो ग्रैब दिस बुक सून, बिकॉज काफी सुना है मैंने एंड बेस्ट सेलिंग बुक में से है। थैंक यू यस फॉर such a wonderful advice, sir. Great. So guys, you can one by one you can just raise your hand. I'll pronounce your name. I'll name you, and then you can ask your question. It is as simple as that. So please do raise your hand. I think तब तक एक क्वेश्चन किसी ने चैट में पूछा था, चैट बॉक्स में। Yes sir. Okay. How to prepare GS integrated with CSAT? अच्छा, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर जीएस इंटीग्रेटेडली विद सीसैट? देखो, ये तो आई वुड से कि ना, अप्रोच पे डिपेंड करता है। अगर आप साथ में प्रिपेयर करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो यही है कि आप, एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया ऑल्सो, क्योंकि आप अगर जैसे मे बी पिछले 2-3 साल के पेपर्स उठा के खुद सबसे पहले सॉल्व करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है कि हमारा सीसैट में कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है या हमारा रीजनिंग स्ट्रांग है या क्वांट स्ट्रांग है। तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे ये है कि आपको एक इनिशियल एक रिव्यू मिल जाएगा, आप आपका कौन सा पार्ट सीसैट में स्ट्रेंथ है, सो दैट कि जितना प्रीलिम्स के पास आके जब फिर पेपर्स करोगे तो आप जो है उस एस्पेक्ट को और स्ट्रांग करोगे। सो दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया। जीएस के साथ भी आप सीसैट, इनफैक्ट ये है कि जैसे हफ्ते में एक पेपर आप सॉल्व कर लीजिए सीसैट का, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया। हफ्ते में एक पेपर भी सॉल्व कर लोगे तो एक टच रहता है कि हाँ, उतने 2 घंटे में हम कितने क्वेश्चन निकाल रहे हैं, कि एटलीस्ट, क्योंकि सीसैट में कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन करना बहुत एसेंशियल है। सो हफ्ते में अगर एक पेपर भी कोई करता है तो वो नंबर उसका अच्छा हो जाएगा, कि शायद अगर वो बिना किसी प्रेपरेशन के एग्जाम के 2 महीने पहले शुरू करेगा तो उसके शायद 40-45 क्वेश्चन हो पाएंगे। बट अगर कोई हफ्ते में एक पेपर भी सॉल्व कर रहा है तो वो एग्जाम के पास जब होता है तो वो 55-60 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है, विच इज अ वेरी एसेंशियल नंबर फॉर सीसैट। ओके, राइट, ठीक है, परफेक्ट। प्रणव, you can please unmute your mic and ask your question. Hello, sir. Hello, Praveen, sir. Hello, Gautam, sir. हेलो Sir, जी, sir, I have what you said initially about being very
spontaneous. So that Hmm. resonated with me. Last year also when I gave my main, that was the one thing that was affecting me, and because of not being spontaneous, it resulted in a way that I couldn't complete my papers itself, and I missed around 150 marks cumulatively, and Hmm. and missed by interview call by like 50 marks. So Okay. so in this year I also talked with Praveen sir and my mentor at Pune branch, and Hmm. they both suggested like making the notes very crisp and doing more practice, and Hmm. that is my mantra for this attempt. But Hmm. sir, sometimes it also feels like when we hear about from various successful or unsuccessful candidates as well, that the year they prepare very hard, that year they don't get the rank or they don't clear mains as well, or Hmm. like such uncertainties constantly bother me, sir. So apart from these things, what do you think that should be taken care of in this next attempt? Okay. So Pranav, see, what is important is that again, आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट सबसे बहुत सारी बातें सुनेंगे, ठीक है, कि जो सक्सेसफुल है आप उससे सुनोगे अच्छा ये हमने किया तो हमारा एग्जाम अच्छा हो गया। बट सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जैसा मैंने बोला कि आपको एग्जॉस्ट नहीं करना है खुद को। जब आप एग्जाम प्रिपरेशन प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, देखिए जैसे मैंने कुछ बातें बोली कि आप अपने बायोलॉजिकल साइकिल को ठीक कीजिए, आप अपने एक प्रेपरेशन को और लाइफस्टाइल को बिल्कुल अलग मत कीजिए। प्रेपरेशन को इंटीग्रेट कीजिए आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ, आपके बायोलॉजिकल साइकिल, आपका सोशल। आप अब अगर बात ये भी होती है कि कई बार बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए हम अगर हर चीज़ से कट आउट हो जाएँगे, सपोज़ आपके प्रिपरेशन के जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपकी फैमिली है, वो सारी चीज़ें जो है आपको सपोर्ट करती हैं। सो माई एडवाइस वुड बी दैट एक प्रेपरेशन को और लाइफस्टाइल को बिल्कुल अलग मत कीजिए, उसको इंटीग्रेट कीजिए। दैट वुड गिव यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो एंड दैट वुड गिव यू अ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में भी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने बोला कि आपका थोड़ा सा जो है 150 मार्क्स छूट गया था, विच इज अ हाई नंबर। सो इसीलिए ये है कि बिल्कुल आप जो है प्रिपरेशन को एक्सक्लूसिव चीज बना देंगे कि हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है ऑल द टाइम, तो इट विल क्रिएट अ मेंटल जोन जहां पे कि आप प्रेशराइज फील करोगे। तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट जोन, यू हैव टू थिंक दैट आई एम गेनिंग थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड आई विल गिव माई बेस्ट on that day on or on those days when mains is going to be hit. That is what is going to help you. Okay. Thank you very much. Great. All right. Thank you, Pranav. So, thanks, sir. So, Sushanta Chaudhary, yeah, please ask your question. हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम सुशांत चौधरी है सर। हम्म। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मतलब यूपीएससी को किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए सर, जैसे कि 1-2 अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए एग्जाम। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर ये सोचेंगे कि 1-2 अटेम्प्ट्स में क्लियर हो जाए तो उसी चीज का प्रेशर बन जाएगा आप पे, ठीक है। सी देयर इज, एज प्रवीण वुड आल्सो एग्री, कोई ऐसा श्योर शॉट वे नहीं होता कि कोई मैं बोल दूं या प्रवीण बोल दें कि अच्छा ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा या सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा। नोबडी कैन प्रिडिक्ट दैट, ओके। एंड जैसा आप खुद भी देख रहे होंगे कि पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है। शायद 4 साल पहले 5 साल पहले शायद लोग ये बोल दे कि हाँ हमारी प्रिपरेशन ऐसी है कि हम पहले या दूसरे अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर देंगे। बट वॉट यू शुड बी रिगोरस एंड डिलीजेंट विद द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अचीव होगा। बिकॉज आपने खुद भी देखा होगा कि इस साल के भी फाइनल रिजल्ट्स में आई एम श्योर सिविल्स डेली से भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ होगा। बट देन इट इज नॉट अबाउट कि वो सब लोग ये सोचते होंगे कि हाँ मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ही दूंगा। यू हैव टू गेट दैट थिंग अवे, बिकॉज
अदरवाइज जो है आप अपने आप को अनड्यू प्रेशर में डालोगे, ठीक है। सो एंड टू एवरीवन इट इज अ यूनिक अप्रोच। अगर कई बार ये होता है कि हमें ये लगता है कि सपोज कोई अगर जॉब कर रहा है, तो वेदर जॉब छोड़ के एग्जाम दे या जॉब के साथ तैयारी करे, अगेन इट्स एन इंडिविजुअल कॉल। अगर आपको ये लगता है कि मैं जॉब के साथ भी फोकस कर सकता हूँ, इक्वल जस्टिस कर सकता हूँ, तो आप कीजिए, या अगर जॉब छोड़ के करना है तो आप कीजिए। बट यू नीड टू फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि हाँ मेरा एक अटेम्प्ट में हो जाएगा। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट आपको हर एक अटेम्प्ट में वो एफर्ट देना चाहिए कि वो आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो। जब भी आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करो, ऑफ कोर्स 100% तैयारी के साथ कोई नहीं कह सकता, बट एटलीस्ट 70-80% आपको कॉन्फिडेंट होना, तब आप एग्जाम दीजिए, चाहे वो आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, एंड आई थिंक उससे आप रिजल्ट्स अचीव करोगे। ओके सर अभी मेरा 24 में पहला अटेम्प्ट है सर। हाँ हाँ, तो 24 में पहला अटेम्प्ट है, तो आप अपने प्रेपरेशन पे ध्यान दो, आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, आप टाइम पे थोड़ा थोड़ा सा आंसर राइटिंग कीजिए, फिर मे बी सर मैं दिसंबर या 2021 से प्रिपेयर किया हूँ सर। ओके ओके। सो अब 21 से प्रिपेयर किया, तो 2 साल से आप कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि आप प्रिपरेशन के अच्छे लेवल पे हो। तो आप ये चीज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ या लेवल पे तो हूँ सर, लेकिन एग्जैक्ट टाइम टेबल कैसे, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि सर कैसे टाइम टेबल से एग्जैक्ट वो सुशांत, का जो जी जी, आज का जो मेरा Sushant, I would, टारगेट। Sushant, I would love to intervene here. Please drop your number here. I'll provide a proper mentor call to you, क्योंकि बाकी बच्चे भी वेट कर रहे हैं एंड सर का भी बहुत प्रीशियस टाइम है। तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं एंड प्लीज ड्रॉप योर नंबर। आई प्रॉमिस कि डिस्पाइट संडे आपको एक मेंटर कॉल में अरेंज कर दूंगा। ओके, नो वरी, प्लीज बी रिलैक्स, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिषेक भरद्वाज, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर, जी जी, गुड इवनिंग हेलो, गुड सर। इवनिंग। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सर, और मैंने अराउंड 1 मंथ से मैं प्रिपरेशन शुरू किया हूँ, बट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लाइक मैं अभी जैसे बेसिक्स बुक पढ़ रहा हूँ, बट तब भी सर थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है कि मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए। लाइक प्रीलिम्स के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 2024 देखूं या नहीं। देखिए अभिषेक, आप 24 अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है एज पर यू? आप कॉन्फिडेंट सर फील अभी कर तो रहे हो? स्टार्टिंग, ऑनेस्टली सर अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही किया है, तो बट ऐसा कुछ नहीं है, बिगिनर की तरह हूँ मैं सर अभी। ओके ओके ओके। सो देखो अभिषेक, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हो तो कितने पेपर्स आप सॉल्व करते हो, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। एंड सेकेंडली बात ये है, अपने जो एरियाज हैं प्रीलिम्स के, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप देख रहे हो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ रही है, तो करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स का जो मल्टी डायमेंशनल इश्यूज हैं, क्योंकि कई सारे करंट अफेयर्स के इश्यूज हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से रिलेट होते हैं। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो उसको कोशिश करो कि ये रिलेट करने की कि वो स्टैटिक कंटेंट से कहाँ पे लिंक हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वो आई थिंक वो वाली अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। एंड अगर आप ये कहेंगे कि क्या मतलब वेरियस सब्जेक्ट्स को आपको टाइम देना है, तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो। अगर आप ज्योग्राफी में स्ट्रांग हो, हिस्ट्री में स्ट्रांग हो, तो उसको रिवीजन करो, एंड थोड़ा ज्यादा टाइम दूसरे एस्पेक्ट्स को दो, इकोनॉमी को दो, करंट अफेयर्स को दो। सो यू हैव टू असेस, आप जो सॉर्ट एनालिसिस वाली अप्रोच होती है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट वाली जो एनालिसिस होती है, उस पे आप चलिए। दैट विल हेल्प यू कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, प्लस अगेन कितना टाइम क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में देना है। तो दैट वुड हेल्प यू अ लॉट, एंड ऑल्सो उससे आप थोड़ा काम बनोगे, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट बनोगे, हेल्प यू। ओके। तो सबसे ज्यादा इश्यू लाइक मुझे जियोग्राफी और इकोनॉमी में हो रही है, तो उसके लिए लाइक मुझे क्या कोई सोर्स आप बता सकते हो जहाँ से मैं हेल्प ले सकता हूँ। और वेदर में कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी सर, कोचिंग लूँ या नहीं सर, सबसे बड़ा कंफ्यूजन मेरे साथ ये चल रहा है अभी।
आई थिंक आपको बुक लिस्ट बेटर प्रवीण वुड बी एबल मैं टू, बताऊंगा। हाँ प्रवीण वुड बी एबल टू से। जी, काफी सारी बुक्स ज्योग्राफी, हैं बट हाँ प्रिसाइज प्रवीण वुड बी बेटर एक्सप्लेनिंग। जी जी, ज्योग्राफी के लिए क्विकली वैसे बता देता हूँ, वैसे आप भी आपका नंबर ड्रॉप कीजिए। सी क्लास Okay, 11th की एनसीईआरटीज बहुत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, दोनों भी। उसके आप नोट्स भी नहीं निकाल सकते, ईच एंड एवरी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th न्यू एनसीईआरटी, एंड क्लास 11th अनदर न्यू एनसीईआरटी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। सो ये दोनों एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार पढ़िए। एडिशनली क्लास 12th की इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, ये एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू टाइम पॉसिटी, अब अगर आप ये सिर्फ 3 एनसीईआरटी अच्छे से करेंगे 3 बार कम से कम, देन आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा होगा। देन यू कैन जंप टू पीएमएफ आईएएस के नोट्स ज्योग्राफी के, जो काफी अच्छे हैं, जो अभी एक 2021 के बाद, आई एम ऑडिबल राइट? yes sir. ओके, 2021 के बाद काफी ज्यादा कोहेरेंट है हमारी चीजों से। सिविल स्टडी के फाउंडेशन के ज्योग्राफी के नोट्स, लेकिन अगर आप इसको नहीं कर पाए, या फिर आपको एक्सेस नहीं मिल पाया, तो फिर क्योंकि आपका एडमिशन मान लीजिए नहीं है यहाँ पे, तो फिर पीएमएफ आईएएस के नोट्स आप इसको रेफर कर सकते हैं। एंड दोज पीपल हु आर नॉट हैंडी और हु डोंट वांट टू गो विद पीएमएफ आईएएस, देन यू कैन रेफर गोची लियोंग का पार्ट 1। जीसी लियोंग जो बुक है, इसका पार्ट 1 आप कर सकते हैं, राइट जी। तो Yes sir. यस, एंड उसके बाद पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए पिछले 10 साल की, एंड हमारे सिविल दिल्ली की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाइए। आई Good थिंक evening, इससे sir. आपका बन जाएगा। Sir, good evening. Could you please listen? Hello. Am I audible, sir? या या Sir, I am Radheshyam from East Champaran, Bihar. And first of all, thanks a lot to both of you. Indeed, you both are really, what to say, I don't have more words to define that. But as you have talked about NCERT, sir, my confusion is that, do we need to cover all the NCERTs from class 6 to standard 12? Could you please shed some light on it? And I am also a beginner. Thank you, sir. Okay, so I think it is not necessary that you have to go through every NCERT class 6 to 12 का. What I would say is आप सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। जैसे अभी प्रवीण बोल रहे थे कि जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्लास 11-12 की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें फिजिकल ज्योग्राफी प्लस जो इंडिया का क्लाइमेट है, दोज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर अगर है तो हिस्ट्री में इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि 6 से 12 का सारा कवर किया जाए, लेकिन जो पीरियोडिक है जैसे एंशिएंट का, मिडीवल का, मॉडर्न इंडिया, वो आप कवर कीजिए, क्योंकि वो तो तीनों अलग से भी बुक्स मिल ही जाती हैं। तो आप वो तीनों बुक को गो थ्रू करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप वो 3 बुक गो थ्रू करोगे तो आप हिस्ट्री में जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन है, यू विल बी एबल टू कवर। एंड सिमिलरली अगर आप जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी आई थिंक एनसीईआरटी का ठीक है, आप थोड़ा बिगिनर लेवल पे 11-12 का गो थ्रू कर सकते हो, बट देन इकोनॉमी थोड़ा सा और स्प्रेड आउट जोन है, तो उसके लिए कोई एक काफी सारी आई थिंक स्पेसिफिक टू सिविल सर्विसेज पीसीएस बुक्स भी हैं इंडियन इकोनॉमी पे, तो उसको भी गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट्स फोकस रखिए, सबसे पहले सिलेबस को सबसे इम्पोर्टेंट ब्लूप्रिंट मानिए। सिलेबस जो जो एस्पेक्ट्स कह रहा है उस हिसाब से कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है डिसाइड कीजिए, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सर। गाइस क्विकली लास्ट के 2 या 3 सवाल लेते हैं, इट्स ऑलरेडी 8:18 है ना। एंड गाइस अगर बिकॉज ऑफ टाइम पॉसिटी सर सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे, या मल्टीपल क्वेश्चंस एक स्टूडेंट के नहीं दे पाएंगे, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डालिए, या फिर आपके नंबर्स बेटर मुझे डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहां से क्या होगा कि हमारी टीम में से कोई आपको कॉल करके आपके सवाल का जवाब देगा, ठीक है। या फिर कुछ चीजें ईमेल करनी तो वो भी करी जाएगी। सो प्लीज डीएम करके रखिए नंबर, क्योंकि मुझे फिर चैट बॉक्स में इंपोर्ट कर लूंगा। ओके, सो यस, कौशलेंद्र सिंह आप सवाल पूछिए क्विकली प्लीज। So my question is how to maintain consistency.
ये हेलो कौशलेंद्र आप बोल रहे हो या कार्तिकेय बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? नो सर, कौशलेंद्र स्पीकिंग सर राइट नाउ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर सर मेरा दो डाउट था, मतलब एक हाँ जनरल डाउट ये है कि जैसे हाँ एक चीज होती है जैसे कंपटीशन को लेके कि हाँ, हम ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, जैसे एक नहीं होता है कि अपने चीज को यस लेके हमेशा डाउट बना रहता है। तो यस बीइंग यस लाइक यस। आप उस जिस पोस्ट पे हैं, मतलब आज जब आप तैयारी कर रहे थे तो आप उसकी चीज को कैसे टैकल करते थे? मतलब हम भी कोशिश कर रहे हैं जैसे मेडिटेशन करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या फिर जो भी अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन एक उस पे यस। चाहिए था और एक एकदम स्पेसिफिक क्वेरी था आंसर राइटिंग को लेके। जैसे अभी हम आंसर राइटिंग स्टार्ट किए हैं GS2 का, तो जैसे हमको कुछ कुछ फीडबैक मिल रहा है, तो हम उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करने में इशू आ रहा है। जैसे वैल्यू एडिशन हो गया, या फिर हमारा मतलब आदत है जैसे पैराग्राफ में लिख दे रहे हैं तो पॉइंट्स में लिखना, तो उस चीज को कैसे रिवायर करें। और मतलब जरूरी है कि कोई एक फिक्स पैटर्न में आंसर राइटिंग करे, जैसे हो सकता है कि हम अपना क्रिएटिविटी ऐसे अलग कुछ कर रही हो यूपीएससी के हिसाब से, तो उसको कैसे टैकल करें? जैसे कोचिंग का एक फिक्स पैटर्न होता है कि जैसे मॉडल समझ आंसर गया। मिल गया तो यस सर। थैंक यू। यस यस। तो कौशलेंद्र, जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये चीज जानने के लिए कि हम क्या अलग कर रहे हैं, सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड बी इंटरेस्टेड इन द प्रेपरेशन इन अ वे दैट कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपका एंड गोल ये नहीं है कि अच्छा इस पे मेरे को एग्जाम देना है 6 महीने में या साल में। ऑफ कोर्स आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो आपका प्राइमरी टास्क है, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस, बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। जब आप इन्वॉल्व रहेंगे, जब आप इंटरेस्टेड रहेंगे कि हाँ, अगर सपोज मैं कुछ अगर पढ़ रहा हूँ, चाहे करंट अफेयर्स, सपोज करंट अफेयर्स में आप हमेशा कोई नई चीज पढ़ेंगे, तो जब आप करंट अफेयर्स में कुछ नया पढ़ रहे हैं तो देयर शुड बी दैट पैशन कि हाँ चलो आज हमें ये नई चीज रीड करने को मिली है, ये नई चीज सीखने को मिली है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, ये जानना बहुत जरूरी नहीं है कि अच्छा ठीक है कंपटीशन इतना है तो मैं उनसे क्या अलग कर रहा हूँ। ये जानना जरूरी है कि वेदर जब भी यू आर कमिंग अक्रॉस कोई नया कॉन्सेप्ट या नई इंफॉर्मेशन, वेदर यू आर पैशनेट अबाउट इट, अगर आप उसके बारे में पैशनेट रहेंगे तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट विथ योर सिलेबस। देखिए कुछ बेसिक चीजें, सिलेबस एंड योर पैशन टू लर्न, वही दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है उसके लिए ये दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि आप अपने फेलो एस्पिरेंट से बेटर हैं कि नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब मॉडल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप अपना प्रिपरेशन लेवल कैसे जज कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सेकंड पार्ट जो है आपका क्वेश्चन का कि जो जब आपको रिव्यू मिल रहा है आंसर्स का, तो आप उसमें कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। आई थिंक ये है कि जो इवॉल्विंग पैटर्न है, जैसे पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट्स में स्पेसिफिक क्वेश्चंस को लिखना, प्रवीण वुड गाइड यू बेटर कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें वन शुड गो पैराग्राफ वाइज या उसको थोड़ा पॉइंट वाइज डिपिक्शन करके। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्रक्स समझिए क्वेश्चन का। क्रक्स अगर आप समझोगे, क्योंकि कई बार ये होता है हिस्ट्री के कई क्वेश्चन है, हिस्ट्री में आप नॉट नेसेसरली उसको हर चीज को हमेशा पॉइंट्स में या कोई फ्लो चार्ट से डिपिक्ट कर दो, या फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी में है या डिजास्टर मैनेजमेंट में है, जरूरी नहीं है कि आप उसे पैराग्राफ में लिखो। सो स्पेसिफिक क्वेश्चन वाइज जाइए, एक कॉमन अप्रोच रखने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए कि मैं अगर GS2 का पेपर लिख रहा हूं तो मैं हर आंसर जो है पैराग्राफ में लिखूंगा। अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाइए, कई जगह पैराग्राफ की जरूरत होती है, कई जगह पॉइंट वाइज या तो दैट वुड हेल्प यू। परफेक्ट, ठीक है। तो आई होप या एक सेकेंड प्लीज। यस कौशलेंद्र, आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर है। और भी डाउट्स के लिए जैसे मैंने पहले कहा DM आप कर सकते हैं, नो वरीज। कार्तिकेय मिश्रा प्लीज आस्क, आई थिंक इसको हम लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। कार्तिकेय प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Yes, sir. My question is, sir, how to maintain consistency, sir? ओके, सो कंसिस्टेंसी का आपने पूछा है। देखिए कार्तिकेय, कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि
कंसिस्टेंसी तब बनी रहेगी जब आप प्रिपरेशन को अपने जो डेली रूटीन है या आपका लाइफस्टाइल है उसके साथ आप इंटीग्रेट करो। आप ये फिक्स करो कि हमें प्रिपरेशन, वी आर इनटू दिस फुल टाइम, वी आर सीरियस अबाउट इट, एंड तब आप रिजल्ट्स अचीव करेंगे। व्हेन यू हैव टू, जैसे क्या होता है कई बार ये अप्रोच होती है कि अच्छा 6 घंटा अलग से निकालना है दिन में पढ़ाई के लिए, तो हम उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। अगर आप लेट से ये इंटीग्रेट करोगे कि अच्छा 3 घंटे सुबह वी हैव टू गिव, देन हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल है, फिर हमको 3 घंटे देने हैं, इस तरीके से ही आप कंसिस्टेंसी बना सकते हो। एंड कंसिस्टेंसी ऑल्सो कुछ चीजें जो हैं आपको इंटीग्रेट करनी होंगी। जैसे अगर आप डेली सुबह उठ के जो है फर्स्ट पार्ट में 30-40 मिनट न्यूज़पेपर को दोगे, तो दैट इफ वो ही आप में एक कंसंट्रेशन का लेवल वैसे ही इम्प्रूव कर देगा। ये एक छोटी चीज है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना 30-40 मिनट एक छोटी चीज है। फिर आप कोई एक सपोज जब आप अपने पढ़ाई से ब्रेक ले रहे हो थोड़ा, या अभी ठीक है आपने 3 घंटे पढ़ाई की है, फिर आप जब रिज्यूम करते हो तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए 10-15 मिनट की, अभी आपने जो पिछले सेशन में जो पढ़ाई की है उसमें से कुछ पार्ट रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। एक थोड़ा लाइट रहेगा और आपका माइंड थोड़ा रिवायर होगा कि ठीक है अभी मैंने ये चीज पढ़ी है, इतना मेरा थोड़ा सा रिटेंशन हुआ है, एंड नाउ आई विल गो अगेन कि अच्छा इस सेशन में मुझे क्या पढ़ाई करनी है। तो दैट इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंसिस्टेंसी। पूरा प्रेपरेशन को एक आइसोलेशन में मत देखिए कि हमें 6 घंटा 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करनी है, उसको इंटीग्रेट कीजिए अपने डेली रूटीन, अपने लाइफस्टाइल के साथ इंटीग्रेट कीजिए। Yes, thank you, sir. Yes. ओके, वेलकम। परफेक्ट। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ लाइक टाइम भी काफी कम है, 8:30 बज चुके हैं, है ना? तो हम सर से फिर से मुलाकात करेंगे, एंड सर को फिर से मैं जी सर को मैं फिर से सारे स्टूडेंट के बिहाफ पे थैंक यू कहना चाहता हूँ, एंड तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि फ्रॉम सिविल्स डेली क्रू एज वेल एज फ्रॉम द सिविल्स डेली स्टूडेंट joined. Thank you so much, sir, for this overwhelming knowledge and everything, the experience you shared with us. And अगर और कभी टाइम मिलता है in a week or two, I would love to like ping you and है ना, I'll request you to join again. So thank you so much, guys, for this wonderful response, and thank you so much for providing your one valuable hour. And thank you so much, sir. Thank you once again. You can please again हाँ chat box में नंबर डालिए, मेरा प्रॉमिस है कि मेरे मेंटर आपको कॉल करेंगे। Thank you everyone. Thank you. Okay, welcome and all the best to Civils Daily and all the students. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, bye. Bye bye, sir. Bye. Signing off, guys. Bye bye.